So today we are going to learn VPC. What is VPC? Why VPC is required? What are the different components in VPC? All these things we are going to learn. So what is VPC? Think VPC is a private data center in the cloud. What is mean by private data center? Everybody knows that all the companies they have their own network. एक internet होता है where we are connected to all the computers around the world. और एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक डेटा सेंटर में सब कुछ प्राइवेट रहता है, मतलब जो भी हम कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहे हैं उस नेटवर्क में वो एक दूसरे से ही कनेक्ट कर सकते हैं, बाहर का कोई आके उसमें कनेक्ट नहीं कर सकता। जस्ट लाइक योर इंटरनेट, इंटरनेट में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं एक कैंपस के अंदर, बट from outside world nobody is going to able to connect to that computer, so we create a private network in all the organizations. Now, if you want a private network in the cloud, Amazon do provide you a default VPC, which is open to world. It has an internet and all the things. But if you require a private network, you can create a VPC. What is VPC? Amazon's VPC provide private virtual private cloud let you provision a logical isolated section of an Amazon. जो भी आपके कंपोनेंट उस VPC में होंगे वो एक दूसरे से बात कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, पर बाहर के लोग अनटिल अनलेस आप अलाउ नहीं करोगे तो वो बाहर के लोग आपके सर्वर्स पे, आपके कंप्यूटर्स पे, EC2 मशीन्स पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड वी कैन क्रिएट आवर ओन VPC where we can configure the VPC according to our wish. The networking part, the security part, traffic level, सब कुछ we can manage by our own. That's the basics of VPC. Web service cloud where you can launch AWS resource in a virtual network that you define. हमारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका नेटवर्क डिजाइन होगा एंड हमारे जो कंपोनेंट है EC2 मशीन, RDS machines, all these things will launch in that particular VPC. Till now we have used default VPC. So how we can create our own VPC, how it is important to understand, and how to create different components in the VPC, we'll see that. You have complete control over your virtual network environment, including selection of your own IP address range, creation of subnet, and configuration of the route table as well as internet gateway. So what we can do, we can create our IP range. कौन कौन सी IP मेरे नेटवर्क में रहेगी, that we can create. We can create subnets क्या होते हैं, we will see that configuration, route tables क्या होते हैं, net gateways क्या होते हैं, internet gateways क्या होते हैं, we will see all this component. But all these things we will define as per our convenience. You can easily customize the network configuration of your Amazon virtual private cloud. For example, you create the public facing subnet for your web server. You create a public facing subnet for your web servers that have access to internet and place a backend server such as database or application server in a private facing subnet with no internet. अब ये क्या कैसा है, अब अभी राइट नाउ डिफॉल्ट VPC इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। जो हम डिफॉल्ट VPC अब तक यूज कर रहे थे वो पब्लिक VPC है। बट इफ यू आर क्रिएटिंग आवर ओन VPC, वी कैन व्हाट यू कैन डू, वी कैन स्लाइस द VPC इन टू पार्ट। एक पार्ट सिर्फ इंटरनेट को एक्सेसिबल होगा, जो कि पब्लिक से रिक्वेस्ट आएगी या इंटरनेट से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो हैंडल। सेकंड पार्ट बिहाइंड द सीन रहेगा, जो कि उसके पास इंटरनेट एक्सेस वगैरह नहीं होगा, वो पब्लिक फेसिंग नहीं होगा, वो प्राइवेट होगा, वहां पे हमारे डेटाबेस वगैरह रहेंगे। योर वेब सर्वर आर एक्सपोज टू द इंटरनेट, बट योर सेंसिटिव एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सर्वर आर नॉट एक्सपोज टू द इंटरनेट। एक EC2 मशीन है जो कि इंटरनेट एक्सपोज्ड है और उसके पीछे का जो डेटाबेस वगैरह है या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो मैं प्राइवेट नेटवर्क में रखूंगा। देखो इंटरनेट को एक्सेस नहीं है तो कोई भी साइबर अटैक नहीं होगा। You can leverage multi-layer of security, includes security groups as well as network access control layers to help you control the access to AWS EC2 instance in each subnet. Security group मैंने बताया था किस टाइप का ट्रैफिक जाना चाहिए, किस टाइप का ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए, वो हम हैंडल करते हैं। उसी का सिमिलर है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वी विल टॉक अबाउट दैट। इट आल्सो कंट्रोल द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक कमिंग टू योर नेटवर्क। Additionally, you can create
hardware private virtual private network VPN connection between your corporate data center and your VPC and leverage the AWS cloud as an extension of your corporate data center. On premise में VPN होता है. VPN is a virtual private network जो on premise में सब इंस्टॉल करके रखते हैं, जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट होता है. कंपनी के एप्लीकेशन वगैरह VPN में ही चलेंगे. तो कंपनी में अगर मेरा VPN है और क्लाउड पे भी हम काम कर रहे हैं, तो हाइब्रिड सिस्टम में हम क्या करेंगे, VPN को VPC से कनेक्ट कर देंगे. सो वही डायग्राम दिख रहा है नीचे. नेटवर्क है, दिस इज पब्लिक नेटवर्क, दिस इज प्राइवेट नेटवर्क, और ये आपका कंपनी का VPN है. ये क्लाउड है, नीचे नीचे क्लाउड पे, ऊपर VPN है. This is a diagram which you have to learn, understand, or mug up. We are going to understand each and every segment or component in this diagram. We'll take step by step how we can create this diagram, what are the different components, how the traffic is coming from one end, and how we are going to the private network. I will explain what is subnet. In Amazon, this is the IP range which you are getting. Can you see 10.0.0.0? This is the IP ranges which are used in the private network. And in Amazon, you can use I think all are allowed in Amazon. 10.0.0.0 hyphen 10.255.255.255 is the IP range. One IP range 172.116.0.0 to 172.31.255.255 is the IP range. And last 192.168.0.0.192.168.255.255. सबनेट मतलब सब नेटवर्क. जो भी मेरा नेटवर्क है, यहाँ पे आप देख रहे हो रीजन, मरून कलर की लाइन रीजन है. दिस इज अ रीजन. इनसाइड अ रीजन वी हैव अ VPC. दिख रहा है VPC, गोल्डन लाइन, थिक गोल्डन लाइन. एंड यू कैन सी द इट हैज अ IP रेंज 10.0.0.0/16. मतलब ये पहले वाला है, ये पहले वाले IP रेंज है. मतलब स्टार्टिंग विद 10.0.0.0 हाइफन 10.255.255 IP रेंजेस मिलेगी इसमें. इतने सारे IPs अवेलेबल इस नेटवर्क में. अगर मैं ये नेटवर्क है, मतलब इतने सारे IPs अवेलेबल है, उसको मैं छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ. दिख रहे हैं छोटे छोटे थिन लाइन, थिन गोल्डन लाइन. दिस इज सेकंड थिन गोल्डन लाइन. पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट. मैंने क्या किया, जो बड़ा VPC था, जो बड़े IP रेंज थे, उसको छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया. सो दिस इज वन ग्रुप 10.0.1.0. यहाँ पे देखो /24 10.0.2.0/24. बड़ा नेटवर्क है, उसको छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना is called as subnet. When we are splitting our huge network into small networks, it's called sub network or subnet. So आप देखोगे यहाँ पे इंटरनेट गेटवे है, राउटर्स है, राउट टेबल्स है, NACL है, सिक्योरिटी ग्रुप भी है, यहाँ पे EC2 machines instance है. We'll see all this component, each and every component, how the traffic will come to this network. Now what is CIDR range? आप कोई भी नेटवर्क में IP रेंजेस होती है. एक स्टार्ट रेंज होती है, एक एंड रेंज होती है. स्टार्ट ऑफ IP रहता है, एंड ऑफ IP रहता है, जैसा जस्ट मैंने पीछे बताया है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है. तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है हमको, हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं. 10.10/8 172.16/2012 192.16.16 ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं. तो दिस रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ IP. दिस रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ IP. कैसे करना है वो मैं बताता हूँ. दैट इज कॉल्ड CIDR. सो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग, अगर मुझे नहीं कैलकुलेट करना, वो मुझे स्टार्ट और एंड रेंज बता देता है. अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल IP, लास्ट यूजेबल IP एंड द काउंट, कितने IP अवेलेबल है उस रेंज में. लेट्स गो टू नोटपैड. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होता है. IPv4 में कितने IP होते हैं, कितने बिट का IP है ये? 32 बिट. कहीं भी आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले, या तो 10/24 या 10.0.0.0/24, दोनों एक ही बात है. जीरो को हम स्किप कर देते हैं जनरली. अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने IPs है, स्टार्टिंग IP कहाँ से, एंड IP कहाँ से है, और कितने रेंज ऑफ IPs अवेलेबल है बेसिकली. सो क्या करेंगे, पहले 32 लिखेंगे, माइनस जो यहाँ पे सफिक्स है ना, ये वाला माइनस सफिक्स, कितना है 24, इक्वल टू 8. नाउ कितने बिट होते हैं, दो वैल्यू होती है बिट की, 0 और 1. 0 और 1 टू द पावर 8 इक्वल टू द पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी, 2 टू द पावर, ठीक है, टू द पावर 8.
256. So this is the number of IPs available in this network. ठीक है, इतनी IPs है मेरे पास. 256 IP होगी अगर कुछ ऐसा लिखा होगा तो. स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्टिंग जो ये लिखा हुआ है यहाँ से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे. So 10.0.0.0 will go to 10.0.0.255 है ना, 256 है ना. सो यहाँ पे समथिंग यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आएगी. जो 8 बिट होता है उसकी वैल्यू कहाँ तक होती है? 0 से 255. हर ब्लॉक है ना इसमें 4 ब्लॉक है. दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज सेकंड ब्लॉक, दिस इज थर्ड ब्लॉक, दिस इज फोर्थ ब्लॉक. सब में 0 to 255 वैल्यूज होती है. अब यहाँ से स्टार्ट किया हमने तो 255 0 से लेके 255 हो गए मेरे खत्म सारी आईपीस. एक और एग्जांपल लेते हैं 10/ सिंपलिसिटी के लिए. सो 32 minus 20 equal to 12. 2 to the power 12 equal to 2 to the power 12. इतनी आईपीज है, इतनी आईपीज अवेलेबल है. अब स्टार्ट कहाँ से करनी है? 10.0.0.0 खत्म कहाँ पे होगी? 10.0.0.255 मतलब 8 बिट खत्म हो गए. अब नेक्स्ट मतलब 255 आईपीस खत्म हो गए यहाँ तक. अगर मुझे नेक्स्ट करना है तो यहाँ पे 1 लिखूंगा और ये 0 हो जाएगा. 257 आईपीस हो गए. डॉट डॉट करके 16. मेरे हिसाब से यहाँ पे 16 आना चाहिए. अगर 0 से लेके 255 होता है, जैसे 250 क्रॉस होता है तो यहाँ पे ऐड करते हैं ना हम लोग, कैरी फॉरवर्ड देते हैं ना हमारे कैलकुलेशन में. पहले 0 था और 255 था. ये आईपीस कंप्लीट हुई है. कितनी आईपीस आई यहाँ पे? 256 आईपीस ही आई है. और मेरे पास कितनी अवेलेबल है? 4000. तो जैसे मैं यहाँ पे इसको एक और ऐड करूंगा 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 हो जाएगा. फिर 0 से लेके 255 500 आईपी एग्जॉस्ट करी. जैसे नेक्स्ट करूंगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा 2. सो ऐसे करते करते मेरे हिसाब से 16 होना चाहिए. दिस इज द आईपी रेंज ऑफ माय स्टार्टिंग एंड एंड रेंज इन माय नेटवर्क. अगर मैं ये नेटवर्क डिफाइन करता हूँ तो CIDR.xyz ये वेबसाइट है जहाँ पे आप डायरेक्टली डालोगे वो खुद बताएगा. 24 डालते पहले. देखो फर्स्ट आईपी यूजेबल आईपी 10.0.0.1 ये 0 कंसीडर नहीं करता. 1 और 0 और लास्ट आईपी देखो 256 आईपी अवेलेबल है. 256 आईपीस अवेलेबल है. पहले नेटवर्क जो हमने लिखा था नोटपैड में, ये वाला 256 आईपीस स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट. सो फर्स्ट यूजेबल आईपी 10.0.0.0 के जगह 1 बताता है और लास्ट 10.0.0.255 के 254 लिखाएगा. अब यहाँ पे हम 20 कर दिया. 10.0.0.0 और 1 एंड विथ 10.0.16.20 लिखा था मैंने. यहाँ पे 16 नहीं होगा लास्ट में, रादर ये होगा 15 to 55. अगर मैं यहाँ Yes, पे sir. 16 लिखता हूँ तो आप देखो 65,000 आईपीज अवेलेबल हुई स्टार्टिंग विथ 10.0.0.1 से लेके 10.0.255 254. अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 24, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल आईपी का कौन सा होगा? 10.0.1.1 और 1.0 बोल सकता हूँ मैं, एंड लास्ट 10.0.1.255 और 254. अगर यहाँ पे 2 कर देता हूँ मैं तो वो फर्स्ट और लास्ट आईपी बताता है हमको मेरे नेटवर्क में. What are the features of VPC? Launch instance into subnet of our choice. अगर मैं कस्टम VPC बनाता हूँ, if you are creating a new VPC, what are the things we can do? Launch instance into subnet of our choice. जो हम सबनेट बनाया, जो सब नेटवर्क बनाया, उसके अंदर जो छोटे छोटे सबनेट्स बनाए हैं, हम उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं.
assign custom IP range in each subnet, configure route table between the subnets, create internet gateway and attach it to our VPC, much better security control over AWS resources, assign security group to individual instance, subnet network access control list, NACL. So all these things we are going to learn. So these are the features which is provided by VPC. Now, what is the difference between default VPC and custom VPC? Default VPC is user friendly, allow you to immediately deploy the instance. So what Amazon did, Amazon knows that when you are new to AWS, you are not able to create VPC. तो उन्होंने default VPC बना के दिया है, which is a very user friendly. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसको select करना है और deploy करना है. आपको EC2 machine बना देना है. But now, as you are maturing enough, you can create your own VPC. So that's why Amazon has created default VPC across all the region. So every region has different VPC. You don't need to know anything about networking to able to provision or deploy instance in AWS as a customer. All subnet in default VPC have route to internet. That means they all have internet access. तो डिफॉल्ट VPC में हर सबनेट जो हम छोटे छोटे नेटवर्क बना रहे हैं सब में कोई इंटरनेट एक्सेस है बाय डिफॉल्ट. मेरे को कुछ चीज प्राइवेट भी करनी है तो मैं डिफॉल्ट VPC में नहीं कर सकता, प्राइवेट सबनेट्स नहीं बना सकता, क्योंकि जो भी सबनेट बनेगी वो बाय डिफॉल्ट इंटरनेट को एक्सेस होगा. ईच EC2 इंस्टेंस हैज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट IP डिफॉल्ट VPC में. इफ यू डिलीट डिफॉल्ट VPC यू कैन रिकवर इट नाउ. प्रीवियसली डिफॉल्ट अगर आपने डिफॉल्ट VPC डिलीट करने का ऑप्शन आता है और डिलीट कर दिया तो काफी प्रॉब्लम होता था रिकवर करने में. Nowadays it's quite easy, आपको इंटरनेट पे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, बट नेवर एवर डिलीट द डिफॉल्ट VPC. डिफॉल्ट VPC में कोई भी चेंजेस मत करो, कभी डिलीट मत करो. कुछ भी करना है अपना खुद का बनाओ. कुछ चेंजेस किया आपका इंटरनेट वगैरह बंद हो जाएगा, कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी, फिर फिक्स करना पड़ेगा. VPC पेयरिंग. VPC पेयरिंग क्या होता है कि अगर आपने एक VPC बनाया है और सिमिलरली दो VPC और बनाए सेम रीजन में, इफ आई वांट टू कनेक्ट टू VPC, इट इज कॉल्ड VPC पेयरिंग. आपने एक नेटवर्क बनाया, यहाँ पे एक EC2 मशीन बनाया, यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया अलग से VPC और वहाँ पे एक EC2 मशीन बनाया. अब ये मशीन को इस मशीन से कम्युनिकेट करना है, ये मशीन और इस मशीन को कम्युनिकेट करना है. यहाँ पे एक EC2 मशीन है, यहाँ पे एक EC2 मशीन है. हर EC2 मशीन कोई ना कोई VPC से अटैच होगी. अब नाउ योर रिक्वायरमेंट इज दैट दिस EC2 मशीन नीड्स टू कनेक्ट टू दिस EC2 मशीन. इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डालना है. डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं? So answer is no, we can't do direct connect communication. So what is the option? मेरे को पहले उसका VPC कनेक्ट करना पड़ेगा. So क्या करेंगे? First of all, we have to provide VPC between connectivity between VPC. Then only we can communicate from this VPC to this VPC. अब VPC को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना हो ना, तो VPC को एक सोसाइटी पकड़ो, ये दूसरी सोसाइटी है. VPC इज अ सोसाइटी, दिस इज अगेन अ सोसाइटी, और उसके अंदर आप रह रहे हो. अगर आपको इस सोसाइटी से कम्युनिकेट करना है, दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करना है, तो जब तक रास्ता नहीं होगा दोनों सोसाइटी के बीच में, आप कम्युनिकेट कर पाओगे क्या? तो आपको सोसाइटी के से नीचे उतरोगे, वो रास्ते पे जाओगे, उस रास्ते से फॉलो करके उस सोसाइटी में जाओगे और उस बंदे से मिलोगे. तो व्हेन यू कनेक्टिंग VPC विथ VPC इज कॉल्ड VPC पेयरिंग. और VPC को अगर जितना अच्छे से रास्ते से समझोगे ना, वो इजी होगा, बिकॉज ट्रैफिक है. ट्रैफिक मतलब कि यहाँ से हम सिग्नल भेज रहे हैं दूसरे EC2 मशीन को. Allow you to connect one VPC with another via direct connect network route using private IP address. Instance behave like as if they are in the same network. अब उन दोनों को क्या लगेगा, ये EC2 मशीन और इस EC2 मशीन को क्या लगेगा कि हम दोनों तो एक ही सोसाइटी में, अलग अलग सोसाइटी है नहीं, क्योंकि रास्ता बना हुआ है और ये प्राइवेट रास्ता है, एक्चुअली पब्लिक रास्ता नहीं है. सिर्फ यही बिल्डिंग के लोग एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का कोई एक्सेस नहीं कर सकता. You can pair VPC with another account as well as in the same account. Same account की VPC pairing कर सकते हैं और cross account भी कर सकते हैं. Pairing is a star configuration. One center pair VPC pair with 4 other no transitive pairing. VPC जो बनते हैं pairing होती है वो स्टार में होती है. You can pair between the region. ये VPC दिख रहा है बड़ा वाला, उसके अंदर एक सबनेट है, उसके अंदर एक EC2 मशीन है. यहाँ पे दूसरा VPC है, दूसरा नेटवर्क है, उसके अंदर दूसरा सबनेट है, उसमें एक EC2 मशीन है. इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है. सो पहले मुझे VPC पेयरिंग करना पड़ेगा.
जब ये कम्युनिकेशन सेटअप हो जाएगा, देन दिस EC2 कैन कम्युनिकेट टू दिस EC2 मशीन वाया VPC पेयरिंग। ऐसे होगा कम्युनिकेट। एक VPC है, एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, दोनों को एक दूसरे से बात करना है। सो आई विल क्रिएट अ VPC पेयरिंग हियर, VPC पेयरिंग हियर एंड हियर एंड हियर। तो मैं एक इंडिविजुअल रास्ता बना रहा हूं। मैंने ऐसे आपको समझाया कि सोसाइटी समझो और प्राइवेट नेट रास्ता बना रहे हैं हम। तो जो भी एक EC2 मशीन यहाँ पे है वो A से बात कर सकता है, A वाला E से बात कर सकता है, A वाला C से बात कर सकता है एंड A वाला D से बात कर सकता है। बट कैन B EC2 machine in B communicate to C in this architecture? Can EC2 machine in B communicate to C? So answer is no. A के थ्रू नहीं कर सकते. We can't go from here to here and here to here. This is not allowed. This is not allowed. No transitive pairing. Transitive pairing नहीं होगा. ठीक है, मतलब अगर B और C को कम्युनिकेट करना है, so what they have to do? They have to create their own path between them. इन दोनों को पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जो VPC के बीच में पेयरिंग होती है उन्हीं में कम्युनिकेट होता है। ये दो VPC के बीच में पेयरिंग है तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट होगा। इन दो VPC के बीच में पेयरिंग है तो इधर ही कम्युनिकेट होगा। यहां से यहां जब नहीं कर सकता मैं वाया ए। ई और बी को कम्युनिकेट करना तो यहां से नहीं कर सकता, मुझे यहां से एक अलग पाथ बनाना पड़ेगा।